हेलो फ्रेंड्स। फिजिकल केमिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में हम आ गए हैं अपने लास्ट लेक्चर पे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड स्टेट को। लिक्विड स्टेट हमारे सिलेबस में बहुत छोटा सा है और जितने भी टॉपिक सिलेबस के अंदर है वो सारे इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे एट दी एंड। सबसे पहला जो टॉपिक है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक कंटेनर में मैंने एक लिक्विड लिया है, कैन कंसीडर वाटर। नाउ इस लिक्विड के बल्क में एक मॉलिक्यूल पर लगने वाले फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। इट इज फाउंड दैट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बल्क are equal from all the direction. So we can say that net force acting on the molecule present in bulk is zero. However, if we consider liquid present on the surface, molecule present on the surface, molecule present on the surface feel force in, you can say that कि molecule जो कि surface पर है, force are acting in the inward direction. Means bulk molecule try to pull this molecule in the bulk. सरफेस के मॉलिक्यूल को बल्क मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अपने पास खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सरफेस मॉलिक्यूल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं। करेक्ट। सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बल्क मॉलिक्यूल जीरो, बिकॉज molecule is attracted equally from the all direction. Forces between the same molecules are called cohesive forces. While in case of surface molecule, force is acting in the downward direction only, which means this molecule try to flow into the body of fluid. Correct? Now, the force which tends to contract the surface of a liquid is known as surface tension, and it is given by F upon L. It is represented by gamma. Surface tension is the force which is acting at the right angles to the surface of a liquid along with the unit length of surface. एक यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस पर राइट एंगल पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसकी टेंडेंसी बल्क मॉलिक्यूल को सरफेस मॉलिक्यूल को बल्क में ले जाने की है, उसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। नाउ molecule which is present at the surface of liquid feel attractive forces more in downward direction, as I told you. These are unbalanced forces which are acting downwards and try to draw the surface molecule into the body, which means these forces try to reduce the surface to a minimum. Now जो molecule bulk में है उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, because net force acting on the molecule is zero. So we can say that bulk of the liquid are associated with lower energy than those at the surface. Surface molecule पर
सरफेस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो कंसिडरेबली ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द बल्क मॉलिक्यूल. In general, we know that molecule have tendency to move from a state of high energy to a low energy state. As a result of this, molecule at the surface become less than that in the bulk. Hence, surface molecule tend to move close to one another to reach out to the minimum energy state. As a result of which, drops of liquid or bubbles are spherical in shape. Because spherical shape is the minimum surface for a given molecule. So आपने देखा होगा लिक्विड की जो सरफेस होती है कुछ इस तरह की हो जाती है बिकॉज डाउनवर्ड फोर्सेज आर एक्टिंग on the surface layer. And spherical shape is the shape which has maximum stability, or you can say that minimum surface energy. That's why the bubbles are spherical in shape. Drop of liquids or bubbles are spherical in shape. This is the application of surface tension also. This surface tension is the function of intermolecular forces. Higher the intermolecular forces acting between the liquid molecules, higher will be the surface tension. And we know that intermolecular forces depends upon the mass, molar mass, you can say that, as well as the type of bonding, type of intermolecular force. Like in case of water, hydrogen bonding exists between water molecules. So the surface tension is very high. If we want to compare surface tension of water with some other liquid like alcohol, we can say that water have more surface tension than alcohol due to more association. Here are some examples of surface tension. Water sliders, which are small insect, can walk on water as their weight is considerably less to penetrate the water surface. जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो आप देख सकते हो वाटर के ऊपर से चलकर निकल जाते हैं. सिमिलरली निडल जो होती है इज ऑल्सो फ्लोट ऑन द सरफेस. Cleaning of dirty clothes also reduce the, or you can say the lowers the surface tension of water. क्योंकि क्या होता है कि क्लोथ पर जो ग्रीस लगा होता है, फैट लगा होता है, उससे सोप मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचता है, इनवर्ड पुल करता है. One more example of surface tension, or you can say the application of surface tension in ज्वाइंटिस का जो टेस्ट होता है वो भी सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन पर ही बेस्ड होता है. नाउ एक और टर्म में पढ़ना है, सरफेस एनर्जी. अभी हमने डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बल्क हैव मिनिमम एनर्जी व्हाइल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस हैव हायर एनर्जी, एंड मॉलिक्यूल हैव टेंडेंसी टू move from higher energy region to the lower energy region spontaneously. Hence, they have tendency to come close to each other and form a spherical shape, which have minimum surface tension. Correct? तो उसी बात से हम उसी कंसेप्ट से हम आगे बढ़ते हैं सरफेस एनर्जी को. Surface tension is reduced. Surface tension is reduce the surface area to a minimum. In order to increase the area of the surface of liquid, we need to work against the force of surface tension. तो अभी मैंने बताया आपको कि सरफेस टेंशन की टेंडेंसी होती है कि वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है. अब अगर हमें इस सरफेस एरिया को बढ़ाना है, यानी सरफेस कुछ इस तरह की हो गई है, अब इसको वापस
ऊपर की तरफ ले जाना है. So we need to do the work. So work required to be done in order to extend the area of a surface of a liquid by 1 meter square is called the surface energy of the liquid. Basically, this work is stored in the form of energy which is known as surface energy. So surface energy की यूनिट क्या हो गई? अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और you can say that joule per meter square. Now, in order to derive the relation between work or energy and surface tension, now let us assume a rectangular wire ABCD, है ना, और इसको मोल्ड कर दिया गया है. मोल्ड करके इसके अंदर इसको सोप बबल में या सोप में डुबोया गया है. इसके अंदर इसके अंदर एक फिल्म बन गई है, सोप बबल की एक फिल्म बन गई है. PQ जो है इसका एक मूवेबल आर्म बना दिया है जो मूव कर रहा है. नाउ सोप फिल्म के अंदर जो मॉलिक्यूल है बल्क में, डेफिनेटली उस पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, लेकिन जो सरफेस मॉलिक्यूल है, अब इस सोप बबल की दो सरफेसेस है, कीप इन माइंड, दो सरफेसेस है, एक अपवर्ड, एक ऊपर वाली सरफेस, एक नीचे वाली सरफेस. सो हमने माना कि जो मूवेबल आर्म है इसने dx डिस्टेंस कवर किया है. डिस्टेंस कवर करके उसकी जो नई पोजीशन है वो a डैश और b डैश से रिप्रेजेंट की. करेक्ट. सो टोटल इनवर्ड फोर्सेस ऑन द बायर PQ, टोटल फोर्सेस कौन से कितने लग रहे हैं? फोर्स क्या होता है? 2 गामा इंटू एल. ट्वाइस क्यों लिया? आपने पढ़ा था गामा इज इक्वल टू एफ बाई एल, बट एज आई टोल्ड यू इसकी दो सरफेसेस हैं, तो आपको फोर्स को क्या करना होगा? ट्वाइस करना होगा. सो टोटल इनवर्ड फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन द वायर PQ इज 2 गामा एल. नाउ वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना माना है? ds. dx इज द डिस्प्लेसमेंट. जो मूवेबल आर्म है उस वायर का, उसने dx डिस्प्लेसमेंट कवर किया है. सो नेट वर्क डन बाय द मूवेबल आर्म PQ is given as force into displacement. Force is 2 gamma L multiplied by dx. Now, if we consider the initial area cross section area कितना होगा? 2x into L, and after dx displacement area become 2lx plus dx. L is the length, x is the width, इधर में आपको दिख रहा है. सो इनिशियल एरिया कितना है? x into L, बट एज आई टोल्ड यू कि दो सरफेस है तो हमें 2x लेना पड़ेगा अपर सरफेस और लोअर सरफेस के लिए. फाइनल एरिया कितना हो गया? 2lx प्लस dx, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो गया dx का. तो जो change in area है, it is given by AF minus AI and can be equal to 2L dx. Now in place of 2L dx we can write delta A. So work done in order to increase the surface area by a distance of dx can be given as gamma into delta A. Your gamma is the surface tension, A is the change in cross section area of liquid. This work is stored in the form of energy which is called surface energy. So this is the expression for the surface energy. Gamma into delta A. Numerical is asked from this formula, so we need to remember this formula also. Now, what are the factors which affecting surface tension? As I already discussed with you, surface tension is the function of intermolecular forces which are acting between the molecules of liquid. Higher the intermolecular forces, higher will be the surface tension. As if we want to compare the surface tension of water with ethanol, we find that water have more surface tension than ethanol. For gases, if we are considering gas, it also depends upon the small a value. Similarly, if we want to compare the
surface tension of H2O and D2O, we will find that D2O have more surface tension than H2O. Now, effect of temperature on surface tension. As we know that on increasing temperature, kinetic energy of the molecules increases. Hence, force of attraction between gas molecules decreases. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जो इनवर्ड फोर्सेस थे वो कम हो रहे हैं, इनवर्ड फोर्सेस कम हो जाएंगे यानी मॉलिक्यूल की टेंडेंसी फ्लो करने की होगी तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा. Correct? So what is find that on increasing temperature, surface tension decreases. Suppose a temperature at which surface tension becomes zero, this temperature is known as critical temperature. अब बढ़ाते जाओगे टेम्परेचर को तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर सरफेस टेंशन नेग्लिजिबल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर. So Itove's equation relate the surface tension with the temperature and given by gamma m upon d power 2 by 3, where m is the molar mass of liquid, d is the density of liquid, Tc is the critical temperature, and T is the normal temperature. Means the temperature of experiment at which we want to know the variation of surface tension or calculate the surface tension. Ramsey and Sealed were the scientists who suggest that surface tension जो इटोव्स ने जो क्रिटिकल टेम्परेचर माना है उससे 6 डिग्री अब पर जाकर के वैनिश होता है. So this relation is slightly changed. This equation is given by Ramsey and Sealed. It is all about the surface tension. Now, this is the basic term which we are going to use in the further part of this lecture. Adhesion and cohesion. Co means same. So cohesion is the intermolecular force which are acting between the सेम मॉलिक्यूल, सेम थिंग के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं. While adhesive forces or adhesion means attractive forces which are acting between the liquid as well as the wall of container or wall of capillary in which we are considering the rise. आगे जो हम rise in capillary वाला फिनोमेना पढ़ेंगे उसको समझाने के लिए टर्म लिया गया है. Now, there are two conditions arise when adhesion is greater than cohesion. So, liquid is said to wet the wall of the glass. This phenomenon is possible with water and other polar liquid. अगर एक कैपिलरी ट्यूब में वो वाटर में मैं अगर डिप कर देता हूँ, वाटर में डिप कर देता हूँ तो वाटर की सरफेस और इस कैपिलरी ट्यूब के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी वजह से लिक्विड के सारे चढ़ने लगेगा. कैपिलरी राइज की फिनोमेना हो जाएगी. करेक्ट? राइज, लिक्विड राइज करेगा इस कैपिलरी में. व्हाइल इन केस ऑफ मरकरी, कोहेशन इज ग्रेटर देन एडेशन बिकॉज मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में मेटल मेटल बॉन्डिंग है. मेटल मेटल बॉन्डिंग उसकी सरफेस के साथ बॉन्डिंग से या फिर उसकी जो बॉन्डिंग कैपिलरी के साथ होगी उससे ज्यादा है, जिसकी वजह से फ्लूइड चढ़ेगा नहीं. करेक्ट? फॉर मरकरी. नाउ लेट्स डिस्कस द राइज ऑफ अ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब. इसका जो डेरिवेशन है वो एग्जाम में पूछा गया है, सो वी कैन राइट एज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हमने क्या किया, एक कैपिलरी ली जिसको हमने लिक्विड के अंदर डाल दिया, ये मानते हुए कि एडहेसिव फोर्सेस आर मोर देन कोहेसिव फोर्सेस. यानी ये लिक्विड क्या होगा, इट हैज टेंडेंसी टू राइज. सपोज लिक्विड ने h हाइट को राइज कर लिया है
एक टर्म हमें और जानना पड़ेगा, दैट इज द कांटेक्ट एंगल, उसके बारे में जानेंगे। एक बात ध्यान रखना, ये जो फिनोमेना है, राइज ऑफ ऑयल इन विक ऑफ लैम्प को भी एक्सप्लेन करती है, राइज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन करती है, राइज ऑफ वाटर और सैप इन द प्लांट्स को भी एक्सप्लेन करती है। So when one end of capillary tube is put into the liquid that wet the glass, the liquid rise into the capillary tube, मैंने बताया ऊपर, to a certain height. This rise is clearly due to inward pull of the surface, push which pushes the liquid into the capillary tube. Now, in case of mercury, which do not wet the glass, the level inside the capillary falls rather than increase. Now, in case of water, या फिर the liquid which wet the glass, the surface become concave. Keep in mind. Important fact है ये, concave. While in case of mercury, surface become convex. These surfaces are called meniscus. Now, the angle with the curved surface, which means meniscus, make with the wall of tube is called contact angle. And it can be found by drawing a tangent at that point. Correct? So, दो केसेस थे, उसको दोबारा एक बार बना लेते हैं। वाटर के केस में कुछ मेनिस्कस ऐसा बना, करेक्ट। इस केस में ये जो एंगल है, इसे हम बोलेंगे कांटेक्ट एंगल। इट इज फॉर वाटर। फॉर मरकरी, ये जो एंगल है, इसे हम बोलेंगे कांटेक्ट एंगल, करेक्ट। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, दोनों केसेस को यहाँ पर दिखाया गया है। इससे पहले हमें डेरिवेशन करना होगा, एक्सिस प्रेशर इनसाइड द एक्सिस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। इसको समझना होगा, इसका यूज करेंगे हम। नाउ कंसीडर ए लिक्विड ड्रॉप। उस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस कितना है, आर। अब इस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस है आर, लेकिन इसके अंदर अब दो फोर्सेस चल रहा है। एक तो सरफेस एरिया, इसकी सरफेस एरिया पर सरफेस टेंशन लग रहा है, जो इस बबल को छोटा करने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर से प्रेशर लग रहा है। तो अगर ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस की टेंडेंसी क्या है, इस बबल को छोटा करने की है। अब अगर ये बबल जो है वो छोटा होता चला गया तो ये बस्ट कर जाएगा, पर ऐसा होता तो है नहीं। जो लिक्विड ड्रॉप्स है उनका भी एक अपना अस्तित्व है, उनकी अपनी स्टेबिलिटी है। तो होता क्या है, इनके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है। इस प्रेशर की टेंडेंसी होती है कि वो आउटसाइड प्रेशर को अपोज करे। जितने फोर्सेस ही ज्यादा लगेंगे, उतना ही प्रेशर ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करेगा। नाउ सपोज कि जो प्रेशर इनसाइड डेवलप हुआ है, उसने इसकी शेप को डी आर चेंज कर दिया, यानी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो आर से बढ़कर के आर प्लस डी आर हो गई। सो दिस प्रेशर ट्राई टू मेंटेन द शेप ऑफ ड्रॉप। सो ड्यूरिंग दिस फिनोमेना, जब बबल छोटा होने की टेंडेंसी हो रही थी, छोटा जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा होने के लिए उसने अपनी शेप को बड़ा किया। मतलब जो सरफेस टेंशन एक इनवर्ड फोर्स की तरह काम कर रहा था, और आउटसाइड प्रेशर भी उस पर उसको पुश करने की, दबाने की कोशिश कर रहा था, कि दोनों चीजें उसको छोटा करने की कोशिश कर रही है। कुछ सेकंड के लिए माना मैंने छोटा हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी ओरिजिनल शेप गेन करने की कोशिश की, पोजीशन चेंज की। तो वो जो इंक्रीज किया उसने अपनी रेडियस में, वो कितना किया, डी आर।
यानी पहले आर थी, अब आर प्लस डी आर हो गई। इन दिस केस वर्क कितना करना पड़ा उसे, डी डब्ल्यू एफ इंटू डी आर, डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू ए। पी इज द extra pressure develop, or you can say that inside pressure, not inside pressure, it is the uh, axis pressure rather than you can say. So P into A into dr. Now A is 4 pi r square. Again अभी हमने ऊपर प्रूव किया था कि this work done can also be equal to gamma into dA, increase in cross section area into surface tension. इंक्रीज कितना हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया में, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, फाइनल कितना हुआ 4 पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व किया, डी आर के स्क्वायर वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि डी आर जो इंक्रीज है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव इंक्रीज नहीं है, उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। टर्म को निगलेक्ट करने के बाद वी विल फाइंड दैट जो वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू है वो ये आ रही है। नाउ इक्वेशन 1 में भी हमने डी डब्ल्यू कैलकुलेट किया, इक्वेशन 2 में भी डी डब्ल्यू कैलकुलेट किया, दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों को बराबर रखा। सो वी फाइंड द एक्सिस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप विच इज इक्वल टू 2 गामा बाई आर। इट इज नोन एज यंग लाप्लास इक्वेशन। करेक्ट। Extra pressure is equal to pi minus p naught. P naught is the external pressure, atmospheric pressure you can say that, it is the internal pressure। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एक्सिस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। कितना आ रहा है 2 गामा बाई आर, नॉट सोप बबल, सॉरी, दिस फॉर लिक्विड बबल, लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहा हूं। अगर मैं सोप बबल की बात करूंगा तो ये फोर्स जो है वो डबल हो जाएगा। कीप इन माइंड सोप बबल हैव टू सरफेसेस, सो सरफेस एरिया बिकम ट्वाइस। जो पूरा एक्सप्रेशन था उसमें सरफेस एरिया को ट्वाइस लेकर के आप डेरिवेशन कर सकते हैं। सो जो आपकी लाप्लास इक्वेशन है वो 4 गामा बाई आर के बराबर आ जाएगी। नाउ कीप इन माइंड दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ फ्लूइड। ये ओरिजिनल पोजीशन थी। इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा और इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 गामा बाई आर, इट इज द एक्सिस प्रेशर। अभी हम डिस्कस करके आए हैं द कॉनकेव शेप, आउटसाइड द प्रेशर, इनसाइड द प्रेशर। आउटसाइड द प्रेशर पी है तो इनसाइड कितना होगा, पी माइनस 2 गामा बाई आर। सो जो एक्सिस प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है, 2 गामा बाई आर। अब इस लिक्विड की जो राइज होने की टेंडेंसी है उसने एच हाइट को राइज किया है, तो इट इज इक्वल टू एच डी जी। These two forces are equal to each other. So 2 gamma by r is equal to HdG. 2 gamma by r is the axis pressure. अब लिक्विड राइज किया है तो उसका जो प्रेशर डेवलप हुआ वो कितना होगा, HdG होगा। दोनों ही बराबर भी होंगे। तो बराबर रखने के बाद H का वैल्यू कितना आ गया, 2 गामा बाई आर डी जी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अब आर है क्या, ये जो मेनिस्कस है ये किसी ना किसी स्फीयर का हिस्सा ही होगा, ये उसकी रेडियस ली गई आर। अब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर दिस कैपिटल आर वैल्यू। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन आर एंड स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी। नाउ यहाँ पे एक डायग्राम दिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्मॉल आर इज द रेडियस, इट इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी के अंदर का फिगर है। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। नाउ दिस इज द एंगल ऑफ थीटा, ये एंगल थीटा है। नाउ ये जो टेंजेंट और बीच का एंगल है कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। दिस एंगल बिकम 90 माइनस थीटा। अब मैं इसको नाम देता हूं ओ ए बी, ओ ए एंड बी।
नाउ OA इज परपेंडिकुलर ऑन द OB, नेट एंगल भी 90 है, तो अगर ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। मुझे लगता है इसको दोबारा से बताना पड़ेगा। नाउ दिस इज द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द टेंजेंट drawn at the point of contact from the surface of liquid। तो इस पॉइंट हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया OB, उस टेंजेंट और इस कैपिलरी के बीच का जो एंगल है उसे हम कॉन्टैक्ट एंगल थीटा कहते हैं। करेक्ट। OA और OB के बीच का एंगल कितना है? 90। ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90। तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये कितना हो गया? थीटा। नाउ फिगर आप देख रहे हो OA से P, OAP is a right angle triangle, so the value of cos theta will be small r upon capital R। करेक्ट। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, the angle theta, this is capital R, this is small r, so cos theta will be small r upon capital R। So in place of capital R we can write small r upon r cos theta, and the expression of height which will liquidarize in the capillary equal to 2 gamma cos theta upon r dg। For water or for maximum time the value of theta is nearly negligible, you can say that 0 degree, and we know that the cos 0 is 1, so the value of h will be 2 gamma upon r dg। The important expression we are going to use in the numerical। This is the case of capillary fall. Same expression is can be obtained for the capillary fall which occur in case of mercury, where h will be the depth of liquid। तो वैल्यू वो माइनस में आ जाएगी, जो थीटा है वो कॉस थीटा की ऐसी वैल्यू आएगी जो माइनस में हो, इसके अलावा और कोई एक्सप्रेशन इसमें नहीं है। नाउ देयर आर सम numerical problems which are solved here, they are formula based problem, so I'm not going to explain these simple problems, you can check their own। Some PYQs are also solved। Now this is question number 5 is quite important, so I'm going to explain this। In this question it is given to you that surface tension of water is 72.8 dynes per centimeter। Calculate the energy required to disperse one spherical drop of radius 3 mm into spherical drop of radius 0.03 mm। यानी एक बड़ी सी ड्रॉप छोटी छोटी ड्रॉप में टूट गई, सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हो गया है वो निकाल करके हमें एनर्जी निकालनी। सो अगर मैं 3 mm रेडियस की स्फेरिकल ड्रॉप है उसका अगर सरफेस एरिया निकालना चाहूं तो 4πr1 स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट करा है मैंने 1.13 10⁻⁻⁴। सिमिलरली छोटी रेडियस जो है 0.003 mm की, उससे जो सरफेस एरिया है वो भी मैंने निकाल लिया है। अब अगर मुझे ड्रॉप्स निकालनी हो कि इस बड़ी रेडियस से कितनी ड्रॉप छोटी रेडियस बन गई होगी, तो मैं क्या करूंगा, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दूंगा। बड़ी रेडियस का जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसका वॉल्यूम डिवाइड बाई छोटी वाले ड्रॉप का वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3πr³। दोनों को डिवाइड करने के बाद पता लगा 10⁹ ड्रॉप्स आर देयर। नाउ दिस इज द एरिया ऑफ वन ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ किया, सो दिस द टोटल एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। स्मॉल ड्रॉप्स का एरिया निकल के आ गया, बड़ी वाली ड्रॉप का एरिया पता ही था, दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। एंड चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया विद रिस्पेक्ट टू सरफेस टेंशन इज नोन एज सरफेस एनर्जी। करेक्ट। नाउ लेट्स सी सम PYQs। ये वाला क्वेश्चन ऊपर सॉल्व कर दिया है मैंने, आप देख सकते हो, ये डायरेक्ट इन्होंने PSP से उठाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैंने नंबर 1 दिया है कि ए ड्रॉप ऑफ वाटर 0.4 सेंटीमीटर इन रेडियस इज स्प्लिट इनटू 125 टाइनी ड्रॉप्स। फाइंड द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जस्ट ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया था उसका डिफरेंट फॉर्म है। मैंने क्या किया, 0.4 सेंटीमीटर वाली रेडियस वाले
ड्रॉप का एरिया निकाला, वहां से फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। यहाँ से मुझे जो स्मॉल ड्रॉप है उसका रेडियस कैलकुलेट हो गया, स्मॉल ड्रॉप का रेडियस कुछ इतना आया। स्मॉल ड्रॉप का रेडियस निकालने के बाद स्मॉल ड्रॉप का एरिया निकालने के लिए पाई आर टू स्क्वायर किया इंटू 129 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्मॉल ड्रॉप का जो टोटल एरिया इंक्रीज होके आ गया है वो कैलकुलेट हो गया। उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग A2 माइनस A1। So you can see that it is quite easy to solve the change. So very simple type of problems are asked, or most of the time formula based problems are asked from this topic. Next, problem number 3, calculate the vapor pressure. This problem can be solved by using Kelvin equation, जो मैं नीचे आपको बता दूंगा। Draw the diagram showing the capillary action of water and mercury. वाटर में मेनिस्कस मैंने बताया था, कॉन्वेक्स और कॉन्क्लेव का केस रहने वाला है, करेक्ट। वो डायग्राम भी बना हुआ है, वो आप यूज कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं बिहेवियर कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस के बेसिस पर कौन सा ज्यादा लगने वाला है। नाउ ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है, जो मैंने आपको असाइनमेंट में छोड़ रखे। How will a liquid rise in a capillary of tube this much diameter if the density and surface tension is given to you? So just अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, H is equal to जस्ट हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, H is equal to 2 गामा अपॉन आर डी जी। इसका यूज कर लेना है। Now this is the desired Kelvin equation. Kelvin equation क्या करती है? Kelvin equation relate the vapor pressure of liquid with the temperature and suggest that the vapor pressure of a small droplets, multiple droplets जो होती है, is greater than the plane surface. अगर लिक्विड की प्लेन सरफेस है उसका वेपर प्रेशर कम होगा इन कंपैरिजन टू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स। This is the expression ln p upon p naught. P naught is the saturation pressure, you can say that, or vapor pressure of bulk sample of liquid. Gamma is the surface tension, m is the molar mass, capital R is the gas constant, small r is the radius of a small droplet, t is the temperature, t is the density, correct? If the curvature is convex, तब क्या होगा? p is greater than p naught हो जाएगा। If the curvature is concave or नेगेटिव होगा देन p लेस देन p naught हो जाएगा। दिस इज द केल्विन इक्वेशन। जो मेन मोटिव इसका क्या है, ये प्रूफ करना कि इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, vapor pressure of liquid is greater than when it is in the form of small droplets than when it has a plane surface. करेक्ट। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी क्या है? बेसिकली विस्कोसिटी, कोई लिक्विड अगर फ्लो करना चाहता है तो उसकी फ्लो में लिक्विड की जो लेयर्स हैं वही रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। जनरल डेफिनेशन के बारे में बात कर सकते हैं। नाउ मैं लेमिनार फ्लो कंसीडर करता हूं। अभी आप समझिए, लेमिनार फ्लो का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का लिक्विड जिसमें सरफेस के करीब वाली लेयर जो है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाते हैं उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, लेयर्स की वेलोसिटी जो है बढ़ती जाती है। सपोज कीजिए एक फिक्स लेयर है, ये फिक्स सरफेस है ये, तो इससे करीब वाली लेयर जो होगी वो रिजिड, वो आपकी मान जाएगी रेस्ट में।
और इससे दूर जितना आप जाते जाएंगे लेयर्स की वेलोसिटीज बढ़ती जाएगी। इस तरह की फ्लो को हम क्या बोलते हैं? लेमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं हम? लेमिनार फ्लो। यानी हर लेयर जो है, हर नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश कर रही है, उसके फ्लो में हिंड्रेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है या रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो हर जगह न्यूटन का कंसेप्ट तो लगता ही है, यहाँ भी लगेगा। हमने क्या कंसिडर किया है कि भाई ये जो दो लेयर है, पहली वाली लेयर रिजिड सरफेस से या फिक्स सरफेस से एक्स डिस्टेंस पर है, दूसरी वाली जो लेयर है वो एक्स प्लस डी जेड सरफेस पर है। माने दो लेयर्स के बीच का सेपरेशन कितना है? डी जेड। पहली लेयर की वेलोसिटी बी है और दूसरी लेयर की वेलोसिटी कितनी है? वी प्लस डी वी। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो गया? डी बी बाई डी जेड। तो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स which is acting between the two layers depends upon the two factor. First is surface area of contact, other one is velocity. Correct? So if we combine equation 1 and 2, we will find that F is directly proportional to A dB by dz. F is equal to minus eta A dB by z. A is coefficient of viscosity. Negative sign कैसे यूज कर रहा है कि विस्कस फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी मतलब फ्लूइड आगे भागने की कोशिश कर रहा है, ये उसकी रिवर्स डायरेक्शन में लग रहा है। इक्वेशन 1 इसको हम क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो फ्लूइड इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, लेमिनार फ्लो को फॉलो करते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। और जिनका फ्लो टर्बुलेंट होता है, इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, उन्हें बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट पॉइज होती है। पॉइज होता क्या है? डाइन सेंटीमीटर माइनस 2 सेकेंड। इट इज द सीजीएस यूनिट। और अगर ऐसा यूनिट निकालनी हो तो वो होती है केजी मीटर इनवर्स सेकेंड। Again, like surface tension, viscosity is the function of intermolecular forces. Higher the intermolecular forces, higher will be the viscosity. So you can say that this is the case of alcohols. Monohydric alcohols are less viscous than dihydric alcohols, while trihydric alcohols are highly viscous due to strong hydrogen bonding between the molecules. Now, let's discuss the factor which affect the viscosity of. In general, it is found that on increasing temperature, viscosity increase exponentially. It is found experimentally that on every 1 degree rise in temperature, allow viscosity to decrease by 2%, अप्रोक्सीमेट 2% डिक्रीज कर जाता है। तो ये इक्वेशन है जो कुछ आर्नियस से मिलती जुलती है। काइनेटिक्स में हमने आर्नियस इक्वेशन पढ़ी थी, उससे कुछ मिलती जुलती है। करेक्ट? अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर होता क्या है? तो बेसिकली एक होल थ्योरी है जो मैं बहुत कम शब्दों में आपको समझा देता हूँ कि फ्लूइड में भी वैकेंसीज या होल पाए जाते हैं। अब लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो इन होल में जाता है, फिर इनसे बाहर निकलता है, जाता है फिर बाहर निकलता है। यानी अगर आप, और इन होल में जाने के लिए, यानी इन होल की टेंडेंसी होती है उसकी फ्लो को रजिस्ट करने की। इन होल में जाने के लिए भी एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी which means liquid can now easily move into the hole and can leave the hole easily. का मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टेंडेंसी फ्लो इंक्रीज कर जाएगी, टेंडेंसी टू फ्लो इंक्रीज कर जाएगी, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। कीप इन माइंड, रिवर्स ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, व्हाट हैपन? अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू कम क्लोज टू ईच अदर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। नाउ रेनॉल्ड नंबर एक टर्म होता है जो डिसाइड करता है कि फ्लो टर्बुलेंट होगा या लेमिनार। तो नॉर्मली देखा गया कि इसका वैल्यू अगर 2100 से कम है तो फ्लो लेमिनार होगा, 400 से ज्यादा है तो फ्लो टर्बुलेंट होगा। रेनॉल्ड नंबर का एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। अब मैं देख रहा था पैराकोर के बारे में न्यूमेरिकल में पूछा गया है। तो पैराकोर इज नथिंग, इट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और यू कैन से दैट इट इज द कोफिशिएंट which correlates surface tension
with the molecular volume of the liquid. It is given by P is equal to gamma to the power 1 by 4 m upon D is what? Molar volume. Correct. So this is the end of liquid solutions. Most of the time इसमें से कैपिलरी राइज की फिनोमेना के बारे में पूछा गया है, या फिर न्यूमेरिकल उस पर बेस्ड W इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा ए, या H जो कैपिलरी राइज है उसकी हाइट कितनी है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया।